Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and I welcome you in my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. तो आज मैं जो टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो आज हम जो टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक एनसीईआरटी से तो डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी सारे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हैज सेवरल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर and out of several application I would like to introduce front of you 3 to 4 very important application. First one is you can say use of bt bacteria in agriculture biotechnology. Bt bacterium is Bacillus thuringiensis bacteria. This bacteria is a very useful bacteria for the agriculture biotechnology. How? I'll tell you. Wait for some time. I'll tell you everything in detail. Then use of agrobacterium. It is also the type of bacteria. Use of agrobacterium in agriculture biotechnology. Then transgenic plants, we can also call them genetically modified plants or genetically modified organism. What is this? Transgenic plant means a plant in which we are adding a new genes from outside. We are introducing a new genes into the healthy plant, so plant will become a transgenic plant. Plant will become genetically modified plant, so it will become under genetically modified organism. Okay, then formation of new variety of plant. Then I'll teach you formation of new variety of plants by biotechnology. Like I'll teach you what is a golden rice plant. I'll teach you what is a flavor saver tomato variety. Flavor saver is the tomato variety. Okay, golden rice plant, flavor saver tomato variety. These are the new variety which are formed by the biotechnology. So biotechnology has tremendous applications in the agriculture field. I will also introduce you pest resistant plants formed by agriculture biotechnology. So guys, here we goes एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो मैं आज आपको इन सभी टॉपिक के बारे में बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर रोल जो है इन सभी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ अभी बीटी बैक्टीरिया का बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम का बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन में क्या यूज होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम कैसे बनाते हैं, फिर न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट कैसे डेवलप करते हैं और आखिरी में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं हाउ वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट वन, applications of biotechnology in agriculture field. Okay, let's start applications of biotechnology in agriculture field. First of all, I would like to give you introduction about the agrobacterium tumefaciens bacteria. Agrobacterium tumefaciens
bacteria. Just imagine that this is the plant we have front of us. Agrobacterium tumefaciens bacteria. Agrobacterium tumefaciens bacteria is a generally soil bacteria found in the soil, and in the DNA of this bacteria, you can say in the DNA or extra to DNA, this bacteria along with the DNA they also contain plasmid, and this plasmid present in the Agrobacterium tumefaciens is a Ti plasmid. Ti stands for tumor inducing plasmid. What is tumor inducing plasmid? Tumor inducing plasmid is a plasmid found in the Agrobacterium tumefaciens, and this plasmid is responsible for causing tumor formation on the plant. This is not that much problematic to the plant, but it is good. It is a good in the field of genetics or rDNA technology or biotechnology. Why? Because it is one type of a selectable marker which gives us particular indication. देखिए जनरली होता क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं. इनके अंदर टीआई प्लाज्मिड नाम का एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. मतलब ट्यूमर कोज करने वाला प्लाज्मिड. अब आप सिंपली लॉजिक से देखिए, जिस प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं उस प्लांट में क्या फॉर्म होता है, उस प्लांट के अंदर एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, जिस प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, उस प्लांट को एक ट्यूमर आपको प्लांट में दिखेगी. और वो ट्यूमर क्यों होती है? क्योंकि प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड नाम का प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड जनरली प्लांट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन कोज करने में इन्वॉल्व होता है. जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस when it is present in the plant, this plant always shows a tumor like portion just because these bacteria are having one plasmid. The name of plasmid is a Ti plasmid. Now you just imagine that suppose this plant is having Ti plasmid, means this plant is having this bacteria, so it is causing tumor. तो प्लांट को कौन सी डिसीज होती है? प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम ग्राउंड गॉल डिसीज. प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज कॉल्ड ग्राउंड गॉल डिसीज. इस डिसीज से, इस बीमारी से प्लांट की हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जनरली ये प्लाज्मिड और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहो या तो बायोटेक्नोलॉजी में काफी अच्छे साबित होते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी हमें जीन्स ट्रांसफर करनी होती है जब भी हमें जीन्स ट्रांसफर करनी होती है एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर, तब हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं. और ये जीन्स जब प्लांट में पहुंच जाती है, अगर वो प्लांट ट्यूमर फॉर्मेशन कोज करता है, तो हमें क्या पता चलता है कि अगर प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर वो प्लाज्मिड चला गया है. और अगर प्लांट के अंदर प्लाज्मिड चला गया है तो ऑब्वियसली हमारी जीन्स भी चली गई है. तो हमारी जीन्स वहां तक पहुंच गई है या नहीं, इसके लिए जो इंडिकेशन है वो है ट्यूमर फॉर्मेशन, और इसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं. अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये चीज होती क्या है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. I will show you another plant. Another plant, I mean to say, first of all, I will show you another bacteria. Now see, there is a bacteria called Bt bacteria. What is the Bt bacteria? Bt stand for Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ये भी एक सॉइल में फाउंड होने वाले, सॉइल में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया हैं. अभी आप इन बैक्टीरिया की खासियत, इनके स्पेसिफिक पिक्यूलियर कैरेक्टर देख लीजिए. just see, this is the structure of Bt bacteria, Bacillus thuringiensis,
and this is the DNA present in Bt bacteria. The DNA of this bacteria have cryogene. And what is the function of this cryogene? This cryogene is a toxicated gene. It is toxicated genes, means one kind of a poisonous gene. समझ लीजिए बीटी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इनके डीएनए के अंदर पॉइजन वाली जीन्स होती है, टॉक्सिन वाली जीन्स होती है. अगर ये जीन्स कोई प्लांट में चली जाए, ठीक है, तो प्लांट को टॉक्सिन नहीं होता, लेकिन प्लांट के ऊपर जो इन्फेक्शियस बोलवर्म, क्रिकेट या तो जो भी इंसेक्ट वगैरह बैठते हैं, वो इंसेक्ट को ये टॉक्सिन मार देगा प्रॉपरली. तो इस चीज का हम एक एडवांटेजेस लेते हैं. जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, बीटी कॉर्न. आजकल इससे काफी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं जिनके अंदर बीटी बैक्टीरिया मतलब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की जीन्स अवेलेबल होती है. Bacillus thuringiensis is a normal soil bacterium and the DNA of this bacteria have a cryogene, and this gene is a toxicated gene. This gene is a toxicated gene. When this gene will enter into the particular plant, if that plant is having infection due to the insect, cricket, you can say bollworm, hookworm, not hookworm, bollworm, otherwise there are so many insects are there which are infecting plant. This insect will be fully destroyed, they will fully die just because poisonous effect of a Bt bacteria. Now I'll tell you how Bt bacteria can kill the insect by transferring into the plant, and how it is transferred by use of agrobacterium tumefaciens. So let's see how it is happening. So here I'll show you use of Bt bacteria and agrobacterium tumefaciens. Just imagine that this plant is insect sensitive plant. This plant is insect sensitive plant. अब आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला जो प्लांट है वो प्लांट इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट है. मतलब कोई भी अगर इंसेक्ट इस प्लांट के ऊपर बैठता है तो वो प्लांट के फूड को, क्रॉप को खा जाता है, और वो इंसेक्ट बेसिकली प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये प्लांट उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमने उस प्लांट को कहा है इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट. इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट. अभी हमें ऐसे क्या करना है, इस प्लांट को हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है. इंसेक्ट सेंसिटिव मतलब जब इंसेक्ट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है तो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन इजीली हो जाता है. लेकिन अब हमें उस प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है. मतलब जब भी इंसेक्ट प्लांट के ऊपर बैठेगा या तो इन्फेक्शन कोज करने की कोशिश करेगा तो प्लांट उससे पॉइजनस इफेक्ट के थ्रू इंसेक्ट को मार डालेंगे. तो वो जीन्स कैसे ट्रांसफर होगी, कहां से होगी, कौन करेंगे, वो सब हम देखते हैं डिटेल में. तो आइए चलिए देखते हैं. सो दिस इज BT. Okay, this is BT, and here I'll show you agrobacterium yes, tumefaciens. This is the agrobacterium tumefaciens, and this one is BT. This one is Bt bacteria, this is agrobacterium tumefaciens. This is DNA of agrobacterium tumefaciens, and this one is Ti plasmid of a agrobacterium tumefaciens. Now what we have to do, we have to remove the Ti plasmid from the agrobacterium. We have removed this Ti plasmid. देखिए हमने agrobacterium tumefaciens का हमने Ti plasmid रिमूव किया हुआ है, और हमने बीटी बैक्टीरिया के अंदर में से एक जीन्स को रिमूव किया हुआ है. कौन सी जीन्स है ये है क्रायोजीन्स. कौन सी जीन है ये वाली है क्रायोजीन. अब हम क्या करेंगे, क्रायोजीन को बेसिकली इस बैक्टीरिया में, इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे. अभी कैसे होता है वो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया हुआ है. प्लाज्मिड कैन बी कट बाय यूज ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, and these genes from the DNA is also cutted by restriction endonuclease enzyme. हमने ये प्लाज्मिड भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू कट किया हुआ है, और ये वाली जीन्स भी हमने डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू ही कट की हुई है. अब फाइनली हमारे पास ये वाली जीन्स है क्रायोजीन, जो टॉक्सिकेटेड जीन है, और ये टीआई प्लाज्मिड है. तो हम इस जीन्स को
इस प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया रिकॉम्बिनेंट। यस, वन जीन फ्रॉम द बीटी बैक्टीरिया एंड वन प्लाज्मिड फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। जब भी दो डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। हमने पिछले वाले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को फिर से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से वाले में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में। तो ये देखिए, जैसे हम इसे ट्रांसफर कर देंगे फिर से इसमें, ट्रांसफर, then this is the agrobacterium tumefaciens and this is our gene. Which gene? Cryogene. And this is now recombinant. अब हम क्या करेंगे, आप देखिए, this we have one bacteria we have created in the laboratory. हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज करके एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है। कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जिसके अंदर टीआर प्लाज्मिड तो है ही उसका खुद का, लेकिन हमने बाहर से जीन्स भी ऐड की हुई है। कौन सी जीन, क्रायोजीन, जो बीटी बैक्टीरिया में से हमने लिए। दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन दी laboratory by recombinant DNA technology or biotechnology, which have own self TI plasmid, but along with that cryogen which we have transferred from the BT bacteria. Now what we will do, we will culture this bacteria. We will culture this bacteria means what, we will grow the bacteria, and after growing bacteria will multiply. बैक्टीरिया ग्रो होने के बाद क्या, बैक्टीरिया की क्वांटिटी काफी सारी बढ़ जाएगी, काफी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब ये बैक्टीरिया लाखों करोड़ों हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को वाटर में मिक्स करके इस प्लांट के सोइल में, मतलब रूट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, जैसे हम प्लांट को कैसे पानी देते हैं, वैसे ही उस पानी में ये वाले बैक्टीरिया मिक्स होने चाहिए, और वो पानी हम इस प्लांट को दे देंगे। हाउ वी विल ट्रांसफर दिस बैक्टीरिया इनटू द प्लांट, this is a single bacteria, we will culture this bacteria, means we will grow this bacteria, means we will multiply the bacteria, and after when this bacteria become a lax growth, we will mix this bacteria into the water and we will give this water into the root of this plant. After around 2 to 3 months, this plant will show tumor. This plant will show tumor. Now you know why plant is showing tumor. प्लांट को ट्यूमर क्यों होती है, अगर प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया उसका टीआर प्लाज्मिड प्लांट में पहुंच जाता है तो प्लांट में क्या होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन। अब आप ये सोचिए, अगर आपने कुरियर वाले को अगर आपने इन द सेंस एक बंदे को अपना एक पैकेट दिया हुआ है कि उस बंदे तक पहुंचा दो, तीसरे वाले तक, अगर वो बंदा तीसरे वाले तक पहुंच जाता है तो आपका पैकेट भी पहुंच जाएगा। सेम लॉजिक है, अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस प्लांट में पहुंच जाता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, और अगर बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो प्लाज्मिड भी पहुंचेगा, और अगर प्लाज्मिड पहुंच जाता है तो हमारी जीन्स, क्रायोजीन्स, वो भी प्लांट में पहुंच जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग दैट when we are transferring this agrobacterium tumefaciens to the plant, if a plant is showing tumor, it means agrobacterium tumefaciens bacteria is rich. If bacteria is rich, obviously plasmid is also rich, and if plasmid is rich, our interested gene, cryogene, is also rich. Now if any insect will come on this plant, insect will thoroughly die. Yes, insect will die. Insect will die. If any insect come here, insect will basically easily die. And this plant, now from insect sensitive plant, it will turn into insect resist. It will turn into insect resistant plant. पहले क्या था, ये इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट था, अभी क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया। मतलब क्या, पहले अगर इंसेक्ट प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते थे तो इजीली कॉज हो जाता था, मतलब इजीली प्लांट को इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई भी इस प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो इंसेक्ट इजीली मर जाता है। क्यों? पॉइजनस इफेक्ट के कारण। और वो पॉइजनस इफेक्ट कहां से आया? बीटी बैक्टीरिया के थ्रू आया। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens in biotechnology, agriculture biotechnology, and use of
बीटी बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूं, वो भी इससे थोड़ा मैच करता है एंड इट इज टू मच इंटरेस्टिंग, बट वी विल यूज द सेम बैक्टीरिया सच एज Agrobacterium tumefaciens because this bacteria is highly recommended for this purpose. Agrobacterium tumefaciens bacteria is very important bacteria for especially for the agriculture biotechnology. Now I'll show you. Generally plant are needing nitrogen. Plant are needing nitrogen. ठीक है? Every plant is getting carbon dioxide from atmosphere during the closing of stomata. Yes, every plant is throwing the oxygen during the opening of stomata, but important thing for the growth and development of plant is nitrogen. So plant need what? Nitrogen. Plant को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इजीली सब मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली अब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। डे और नाइट अलग अलग टेक्निक होती है वो, लेकिन प्लांट में नाइट्रोजन जो होता है वो काफी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमें क्या करना है, इस प्लांट को नाइट्रोजन एब्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है, और वो कैसे करेंगे हम? सी, आई शो यू वन बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड rhizobium bacteria. This bacteria is a rhizobium bacteria, and this rhizobium bacteria, the DNA of this rhizobium bacteria have a particular gene, and the name of gene is a NIF gene. What is the full form of NIF gene? NIF gene stands for nitrogen fixing gene. मतलब होता क्या है, हमारे पास अब एक इस समय एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे बीटी बैक्टीरिया के ऊपर एक जीन्स थी क्राई नाम की, और क्राई जीन्स से बेसिकली पॉइजन फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो बैक्टीरिया वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, और राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर निफ नाम की जीन्स होती है जिसका काम है नाइट्रोजन फिक्स करना। एटमॉस्फेयर में से ये जीन्स नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करती है, तो ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, वी हैव बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड द डीएनए ऑफ दिस राइजोबियम बैक्टीरिया हैव अ पर्टिकुलर जीन कॉल्ड निफ जीन. This NIF gene stand for nitrogen fixing gene, and this nitrogen fixing gene has the capacity to absorb nitrogen from the atmosphere and transfer to the upper parts of a plant body for the growth and development of plant body. अब हम ये कैसे करते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम NIF gene को रिमूव करेंगे. This is NIF gene. NIF gene we have got it from Agrobacterium. Sorry, we have got it from Rhizobium. Now here we have Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. This is the DNA of Agrobacterium tumefaciens. This one is हम ये रेड कलर से ड्रॉ करेंगे. This is the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. हमने TI plasmid को बेसिकली बाहर रिमूव कर दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, we will break this TI plasmid with the help of restriction endonuclease, and we will transfer this NIF gene into the Agrobacterium tumefaciens. Into the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. Now this becomes again recombinant. We will transfer this recombinant into the Agrobacterium tumefaciens, and how it will look? It will look like this. It will basically look like this. Okay. Now what we will do? We will same जैसे हमने पहले बताया, we will grow this bacteria, means we will multiply this bacteria, we will culture this bacteria, and when we will get lakhs or crores copy of this bacteria, what we will do, we will transfer this bacteria to the plant, and after some time plant will again show the tumor. अगर प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है तो हम क्या गेस करेंगे, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया पहुंच गए हैं. अगर ये बैक्टीरिया पहुंच गए हैं तो इनके अंदर का प्लाज्मिड जो है टीआई प्लाज्मिड वो भी पहुंच जाएगा, और अगर प्लाज्मिड पहुंच जाता है तो हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स भी पहुंच जाएगी, और अब ये प्लांट, यस यू कैन से प्लांट विल बिकम
नाइट्रोजन एब्सॉर्बेंट। अब प्लांट क्या बन जाएगा, प्लांट खुद नाइट्रोजन एब्सॉर्बेंट बन जाएगा। मतलब प्लांट एटमॉस्फेयर में से खुद ब खुद नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी अब खुद रखेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, वो प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है। और इस चीज की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हमने दो एक्सपेरिमेंट किए। हमने पहले बीटी बैक्टीरिया में से क्रायोजेन उठाई और वो बेसिकली प्लांट के अंदर ट्रांसफर की, ताकि प्लांट इंसेक्ट सेंसिटिव में से रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, उसके बाद हमने सेम बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो हमने राइजोबियम बैक्टीरिया में से उठाई और वो जीन ट्रांसफर कर दी सेम प्लांट के अंदर, और अब ये प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी खुद कर सकता है। अब इस प्लांट को बाहर से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं, ये खुद ही नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी रखता है एटमॉस्फेयर में से। Yes, what I taught you at the beginning I taught you Agrobacterium tumefaciens basically have a TI plasmid. This TI plasmid have ability to transfer genes from any bacteria to the plant body. Just because of this opportunity, we have done two experiments. First, we carry the cryogen. First, we remove the cryogen from the Agrobacterium tumefaciens. We got the cryogen from the you can say Bacillus thuringiensis bacteria, and we transfer into the TI plasmid. Finally, we transfer to the plant, and plant turn from you can say insect resistant into the insect sensitive into the insect resistant. Sensitive मतलब उनमें इन्फेक्शन लगता है, resistant मतलब इन्फेक्शन नहीं लगता, पावर है उनके अंदर. And then second option we took a nitrogen fixing gene from rhizobium bacteria and transfer into the plant. This is applications of Agrobacterium tumefaciens in agriculture biotechnology, use of BT bacteria in agriculture biotechnology, use of rhizobium bacteria in agriculture biotechnology. चलिए हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी के अंदर बाकी कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं. Rhizobium bacteria and BT bacteria both can be beneficial in the agriculture biotechnology, but only in combination of Agrobacterium tumefaciens. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ना क्रिएटिंग अ न्यू प्लांट. द नेम ऑफ प्लांट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो. नाउ व्हाट इज दिस फ्लेवर सेवर टोमेटो? आई टेल यू. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज यू कैन से टोमेटो फ्रूट. इमेजिन कर लीजिए टोमेटो फ्रूट है, इसके अंदर 3 लेयर्स है. ठीक है, देयर आर 3 लेयर. फर्स्ट लेयर इज एपिकार्प, middle layer is mesocarp, and inner layer is endocarp. There are 3 layers. Now just see, basically tomato जो होता है उनके अंदर 3 लेयर होती है. outer is epicarp, middle is mesocarp और inner one is endocarp. अब बेसिकली होता क्या है, टोमेटो में से एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं पोली galactoronase. Now see this enzyme, you know what is the function of this enzyme? This enzyme basically decreases the shelf life of tomato. अगर आप एक टोमेटो को फ्रिज में रखते हो तो ऑलमोस्ट वो 5-6 दिन तक नॉर्मली रह जाएगा, लेकिन अगर आप टोमेटो को बाहर रूम में रख देते हो तो वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा. सेम लॉजिक है. अगर आप टोमेटो को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हो, मतलब अगर टोमेटो को 7 दिन की जगह पर 25-30 दिन तक ऐसे ही सर्वाइव करना चाहते हो, उस टोमेटो को ऐसे ही रखना चाहते हो अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया हुआ नया प्लांट, जिसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और यू कैन से ट्रांसजेनिक प्लांट. अभी साइंटिस्टों ने किया क्या हुआ, ये देखिए. Flavor saver tomato is a variety of tomato in which polygalactouronase, this enzyme which basically decreases the shelf life of tomato. This scientists have delayed the appearance of this enzyme into the tomato. मतलब ये टोमेटो अगर प्लांट में टोमेटो प्लांट में अगर ये एंजाइम 7 दिन में प्रोड्यूस होती है, तो साइंटिस्टों ने
इस एंजाइम्स का प्रोडक्शन 4 to 5 टाइम डिले कर दिया हुआ है। मतलब अगर ये एंजाइम 7 दिन में प्रोड्यूस होती है तो अब ये 7 दिन की जगह पर 20 दिन 25 दिन के बाद प्रोड्यूस होगी। अगर ये एंजाइम 25 दिन के बाद प्रोड्यूस होती है तो टोमेटो की आउटर कवरिंग एपिकार्प वो वैसी की वैसी ही रहेगी और टोमेटो अच्छी कंडीशन में रहेगा। Flavor Saver tomato is a new variety of tomato which have a long lasting lifespan just because polygalactouronase enzyme is its production is delayed in this tomato. But remember the flavor and savor, the flavor of this not flavor saver, the flavor of this tomato is always same like original tomato. That's why the name is given Flavor Saver tomato. Yes, it is a genetically modified variety of a plant. Genetically modified variety of plant. You can say transgenic plant. Now I'll tell you one more example. I'll show you here only. Golden rice. Now what does it mean by golden rice? So from the rice we are generally getting the carbohydrate. बेसिकली राइस से जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर सी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ में अगर राइस में से हमें विटामिन ए भी मिले तो कितनी अच्छी बात है। वी नो दैट विटामिन ए इज ओनली ऑब्टेन फ्रॉम फ्यू नंबर्स ऑफ थिंग्स लाइक यू कैन से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, आमला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Some fruits are there from which we are getting vitamin A. But imagine that rice we are preferring daily in our daily routine life, and if a particular rice have a vitamin A content also, then our eye related problem will be easily solved. You can imagine that. Normally क्या होता है कि विटामिन ए से रिलेटेड जो कुछ फ्रूट है, गाजर हुई या तो पालक हुई या तो फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कुछ आते हैं, आंवला होते हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक फ्रूट है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फ्रूट और वेजिटेबल है. लेकिन अगर आप ये सोचिए जो हम डेली खाते हैं राइस, अगर राइस में विटामिन ए मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है. तो गोल्डन राइस जो है उसके अंदर विटामिन ए भी अवेलेबल होता है. कैसे मैं आपको बता रहा हूं. जनरली दिस इज अ डीएनए ऑफ white rice and this is a DNA of either Erwinia plant, daffodil plant और carrot plant. अभी आप सोचिए ये है व्हाइट राइस, मतलब व्हाइट राइस का डीएनए, और ये है डीएनए किसका. आप इरविनिया प्लांट का डीएनए ले सकते हो, डेफोडिल प्लांट का डीएनए ले सकते हो, कैरेट प्लांट का डीएनए ले सकते हो, क्योंकि इन सभी में बीटा कैरोटीन जीन्स अवेलेबल होती है. इन सभी प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन जीन्स अवेलेबल होती है. अब होता क्या है, ये सभी इनमें से किसी भी प्लांट का अगर आप बीटा कैरोटीन जीन्स व्हाइट राइस में ट्रांसफर कर देते हो बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये वाला जो राइस है फ्यूचर में ये व्हाइट कलर में नहीं प्रोड्यूस होगा, ये गोल्डन शेड कलर में प्रोड्यूस होगा. लेकिन हमें शेड से लेना देना नहीं, हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू से लेना देना है. दिस प्लांट आफ्टर टर्निंग फ्रॉम व्हाइट राइस इनटू द गोल्डन राइस, इट विल नॉट कंटेन ओनली शुगर, it will also contain some extra amino acid and it will also contain vitamin A, but it will not contain vitamin A, it will contain pro-vitamin A. लेकिन जब भी हम ये राइस खाएंगे तो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलने के बाद ये प्रो विटामिन ए का कन्वर्जन विटामिन ए में हो जाता है. सो प्रो विटामिन ए टर्न इनटू द विटामिन ए विच इज ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ. सो दिस इज यूज ऑफ agriculture biotechnology in flavor saver tomato as well as use of agriculture biotechnology in creating golden rice like plant. ठीक है, अब मैं आपको एक और टेक्निक और एक चीज बताता हूँ. एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे दिया हुआ था बाय यूज ऑफ अ बीटी बैक्टीरिया. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट वन प्लांट व्हिच इज इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट and we have to select the insect resistant plant. Insect sensitive plants are those which are basically affected by insect, and insect resistant plant are those which are resisting against insect.
So what we have to do, we have to transfer the genes from insect resistant plant to the insect sensitive plant. That's all. This plant will automatically turn into the insect resistant plant, and after insect resistant, this plant will never suffer from infection disease. होता क्या है, हम अगर हमें प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो प्लांट लेने पड़ेंगे, एक इंसेक्ट सेंसिटिव मतलब जिसको इंसेक्ट से बीमारी होती है, और एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब जो इंसेक्ट से सर्वाइव कर पाते हैं। हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट की जीन इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देनी है। फिर वो चाहे आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन बैक्टीरिया के थ्रू करो, फिर या तो आप माइक्रो इंजेक्शन करो, या तो फिर आप जीन गन मेथड से करो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, जीन गन, बायोलिस्टिक, etc etc. So this is use of agriculture biotechnology in the this is the use of biotechnology in the field of agriculture field. There are so many examples we have discussed today. So thank you so much for watching this video. ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे बेसिकली सीबीएसई का, एनसीईआरटी का और स्टेट बोर्ड का काफी सारे पॉइंट है इसमें कवर करने थे। हमने आज 5 पॉइंट देख लिए। देखिए, सबसे पहले हमने देखा यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस, then we discuss use of a Bacillus thuringiensis bacteria, then we discuss use of a Rhizobium bacteria which produces NIF gene, then we discuss flavor saver tomato, new variety of tomato, then we discuss about golden rice. So it was our video, it was our lecture related to applications of biotechnology in agriculture field. Thank you so much.